નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો બુલેટિન ઇન્ડિયા અને હું છું શિવમ. ખાસ ખબર સાથે આપ સૌનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં વાત કરીશું મહત્વના સમાચાર. એક આજે તમિલનાડુથી આવ્યા ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર. દેશ માટે કહી શકાય કે જે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બિપિન રાવત અને જે 14 લોકો સવાર હતા તે હેલિકોપ્ટર MI-17V5 તમિલનાડુના કિન્નૂરમાં તે ક્રેશ થયો અને તે મામલે જ મહત્વના સમાચાર રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહને લઈને આવી રહ્યા છે. તો રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહની વાત કરીએ તો રક્ષા મંત્રાલય પહોંચી ગયા છે અને જે વાયુસેનાના પ્રમુખ છે તેમની સાથે તેમણે વાત કરી છે. તો રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે વાયુસેનાના પ્રમુખ સાથે આ સમગ્ર જે બાબત જે ઘટના બની છે તેની સાથે વાત કરી છે. બિપિન રાવતના ઘરની પણ સુરક્ષા છે તે અત્યારે વધારાઈ દેવાઈ છે. એર ચીફ થોડી વારમાં ઘટના સ્થળે છે તે પહોંચવાના છે. ત્યાંથી જે રવાના થવાના છે તે સ્થળ માટે એર ચીફ માર્શલ વાત કરીએ VR ચૌધરી જે દુર્ઘટના સર્જાઈ છે તમિલનાડુના કિન્નૂરમાં તો ત્યાં જવા માટે તેઓ રવાના થશે. તો રક્ષા મંત્રાલય પર પહોંચી ગયા છે રાજનાથસિંહ. અને વાત કરીએ તો એવું કહેવામાં આવે છે કે રાજનાથસિંહ સંસદમાં આના મુદ્દે છે તે નિવેદન પણ આપી શકે છે. તો રાજનાથસિંહે વાયુસેનાના પ્રમુખ સાથે પણ આ મુદ્દે વાતચીત કરી છે અને સાથે જ CDS ની વાત કરીએ CDS જનરલ બિપિન રાવતના ઘરની સુરક્ષા પણ આ મુદ્દે છે તે વધારાઈ દેવાઈ છે. જે સૂત્રો પાસેથી હાલ માહિતી મળી રહી છે તો તેની વાત કરીએ તો જે બિપિન રાવત છે તેમની હાલત અત્યારે ગંભીર છે તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તેમની હાલ સારવાર ચાલી રહી છે અને અત્યારે વાત કરીએ તો સમગ્ર દેશ અત્યારે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે અને બુલેટિન ઇન્ડિયા પણ એ જ કહી રહી છે કે એમની પણ સારવાર ચાલી રહી છે. સાથે જ બિપિન રાવતની પણ જે સારવાર ચાલી રહી છે તો જલ્દીમાં જલ્દી તેઓ સાજા થઈ જાય અને તેવી જ પ્રાર્થના છે તે અત્યારે સમગ્ર દેશ પણ કરી રહ્યો છે. ત્યારે વાત કરીએ છીએ જે હેલિકોપ્ટરની વાત કરીએ છીએ MI-17 તો 14માંથી 11 લોકોના મૃતદેહ છે તે મળી આવ્યા છે. તો ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર જે કહી શકાય કે બિપિન રાવતના ઘરની પણ સુરક્ષા આ મુદ્દે જ વધારાઈ દેવાઈ છે. અને વાત કરીએ તો જે હેલિકોપ્ટર પર 14 લોકો સવાર હતા તો એક કાર્યક્રમમાં તેઓ ભાગ લેવા માટે જઈ રહ્યા હતા અને ત્યારે જે તમિલનાડુના કિન્નૂરમાં આ હેલિકોપ્ટર છે તે ક્રેશ થયું હતું. જે હેલિકોપ્ટર જ્યાં ક્રેશ થયું હતું તે જંગલ વિસ્તાર હતો અને ત્યાં એ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું. અને જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા ખૂબ જ દુઃખદ એ દ્રશ્યો હતા કે કહી શકાય કે જે હેલિકોપ્ટર હતું ખૂબ જ ક્રેશ થયું તો ખૂબ જ ગંભીર અવસ્થામાં પણ આપણને છે તે દેખાયું હતું. ત્યારબાદની વાત કરીએ તો એક બાદ એક સમાચાર છે તે સામે આવે ને જેમાં મૃતદેહો પણ સામે આવી રહ્યા છે. અને વાત કરીએ જેટલા પણ અત્યારે જેમની સારવાર ચાલી રહી છે જે લોકો ઓબ્ઝર્વેટરમાં છે તેમાંથી વાત કરીએ તો 3 જેટલા લોકોની અત્યારે વાત કરીએ તો 85%થી વધારે તેઓ આજે આગ લાગી હતી જે પ્લેન માફ કરશો હેલિકોપ્ટર જે ક્રેશ થયું હતું ત્યારબાદ જે હેલિકોપ્ટરમાં આગ પણ લાગી ગઈ હતી ને 3 જેટલા લોકો હાલ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે. અને વાત કરીએ તો 85%થી વધારે તેઓ દાઝી ગયા હતા. એટલે હાલત અત્યારે ખૂબ જ ગંભીર છે. 11ના મૃતદેહ હાલ મળી આવ્યા છે. MI-17માં કોણ કોણ સવાર હતું? જીતેન્દ્ર કુમાર. આ સિવાય વાત કરીએ તો વિવેક કુમાર જે હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા તેમની. આ સિવાય આગળ વાત કરીએ તો HAV સતપાલ સિંહ જે તેમાં સવાર હતા. CDS જનરલ બિપિન રાવત તેમાં સવાર હતા. આગળ વાત કરીએ તો મધુલિકા રાવત કે તેમના ધર્મપત્ની છે તે જ હતા. અને આ સિવાય લેફ્ટનન્ટ કર્નલ પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. હરજિંદર સિંહ જે આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. આગળ નાયક ગુરસેવક સિંહ પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં જે સવાર હતા. આગળ વાત કરીએ બ્રિગેડિયર LS લિડ્ડુર જે ત્યાં આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. લેફ્ટનન્ટ કર્નલ હરજિંદર સિંહ પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. તો જેટલા પણ લોકો આમાં સવાર હતા તમામની આપણે વાત કરી કોણ કોણ સવાર હતું જેમાં આપણે વાત કરી જનરલ બિપિન રાવત, મધુલિકા રાવત, બ્રિગેડિયર LS લિડ્ડર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ હરજિંદર સિંહ, નાયક ગુરુસેવક સિંહ, નાયક જીતેન્દ્ર કુમાર, લાન્સ નાયક વિવેક કુમાર, લાન્સ નાયક BI તેજા, હવાલદાર સતપાલ સિંહ એ પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા. તો કુન્નૂરમાં આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું જેમાં અત્યાર સુધીની વાત કરીએ તો 11 જેટલા મૃતદેહ આમાં મળી આવ્યા છે. જ્યાં હેલિકોપ્ટરની ક્રેશની ઘટના બની છે તેની વાત કરીએ તો જે સરકારે તપાસના આદેશ તુરંત જ આપી દીધા છે. વાયુસેના સાથે પણ વાત કરી છે. રક્ષા મંત્રાલય પહોંચી ગયા છે. અને ત્યારબાદ વાત કરીએ તો રાજનાથસિંહ કે જેમણે તપાસના આદેશ તુરંત જ આ મુદ્દે છે તે આપી દીધા હતા.
તો પ્રાથમિક જે માહિતી જ્યારે સામે આવી હતી, સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો જ્યારે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું ને ત્યારબાદની માહિતી જે સામે આવી હતી, સૂત્રો પાસેથી જે માહિતી સામે આવી હતી તેમાં એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે જે હવામાનના કારણે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હોય તેવું કહેવાઈ શકે છે, પરંતુ હવે તપાસના આદેશ આપી દેવાયા છે અને ક્યારે આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થવાના મુદ્દે શું સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તેના મુદ્દે હવે જે તપાસના આદેશ આપી રહ્યા છે ત્યારબાદ જ આપણને આમાં ખબર પડશે. તો તુરંત જ તપાસના આદેશ આપી દેવાયા છે. તમિલનાડુના કુન્નુરના જે જંગલ વિસ્તાર હતો કે જ્યાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું, તો જે પ્રકારે આપણે વાત કરી, તમિલનાડુના કુન્નુરમાં આ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું અને જંગલ વિસ્તાર હતો કે જ્યાં આ સેનાનું હેલિકોપ્ટર MI-17V5 ક્રેશ થયું. આ દુર્ઘટના પછી જે હેલિકોપ્ટરમાં આગ પણ લાગી ગઈ હતી અને જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા, આપ ટીવી સ્ક્રીન પર આ દ્રશ્યો છે તે તમામ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે ખૂબ જ ગંભીર અવસ્થામાં આ દ્રશ્યો જે સામે આવ્યા હતા. જે પ્રકારનું હેલિકોપ્ટરનું ક્રેશ થયું હતું, હેલિકોપ્ટરના ખુરચા ઉડી ગયા છે તેવા આ દ્રશ્યો છે તે સામે આવ્યા હતા. ત્યારબાદ જે સમાચાર સામે આવ્યા, ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર દેશ માટે કે 11 જેટલા મૃતદેહ આમાંથી અત્યારે મળી ચૂક્યા છે. અને જે બિપિન રાવતની વાત કરીએ, સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવત જે અત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ છે તેવું અત્યારે કહેવાય રહ્યું છે અને તેમની હાલત પણ અત્યારે ખૂબ જ ગંભીર માનવામાં આવી રહી છે. જનરલ બિપિન રાવતની વાત કરીએ તો ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તરીકે તેઓ જવાબદારી નિભાવે છે. ખૂબ જ મહત્વનું પદ સેનામાં કહેવાય છે. આ સિવાય વાત કરીએ જો ઊંચાઈ પર યુદ્ધ લડવાના તેઓ એક્સપર્ટ છે તેવું પણ કહેવામાં આવે છે. આ સિવાય ભારતીય સેનાના 27મા અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. વાત કરીએ તો સ્વોર્ડ ઓફ ઓનરથી પણ તેમનું સન્માન છે તે કરવામાં આવી ચૂક્યું છે. તો જે પ્રકારે આપણે વાત કરી, તમિલનાડુના કુન્નુરમાં જે સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું તેમાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બિપિન રાવત અને તેમના પત્ની સહિત 14 લોકો આ હેલિકોપ્ટરમાં સામેલ હતા. તેમાં સવાર હતા, એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે જઈ રહ્યા હતા. જો 3 લોકોને આમાં છે તે બચાવી લેવાયા છે, પરંતુ તે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં દાઝી ગયા છે. જે આગ લાગી છે તેના કારણે 85%થી વધારે તેઓ દાઝી ગયા છે. 11ના મૃતદેહ છે તે અત્યાર સુધી મળી ચૂક્યા છે. તો બિપિન રાવત વિશે સત્તાવાર માહિતી હજી જે રાજનાથસિંહ અત્યારે રક્ષા મંત્રાલય પહોંચ્યા છે અને વાતચીત ચાલી રહી છે. વાયુસેના સાથે પણ તેમના પ્રમુખ સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે. સત્તાવાર માહિતી રાજનાથસિંહ તરફથી જ્યારે આવશે તો અમે આપને ચોક્કસથી જણાવીશું, પરંતુ કોઈ સત્તાવાર માહિતી અત્યાર સુધી સામે નથી આવી. જે સૂત્રો પાસેથી માહિતી આવી રહી છે તેના આધારે અત્યારે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કે તેમની હાલત અત્યારે ગંભીર છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. તો આ પૂરો દેશ આજે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. જેટલા પણ લોકો અત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ છે તે જલ્દીમાં જલ્દી સાજા થાય તેવી પ્રાર્થના છે તે કરી રહ્યા છે. તો સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવતના કરિયરનો એક મોટો ભાગ આપણે વાત કરીએ તો ભારતીય સેનામાં તેમણે સેવા આપી છે. તેઓ ઊંચાઈ પર યુદ્ધ લડવાના એક્સપર્ટ છે તેવું પણ માનવામાં આવે છે. તો ખૂબ જ મહત્વનું પદ છે આ સીડીએસ જનરલની આપણે વાત કરીએ તો જે હેલિકોપ્ટરની આપણે વાત કરીએ છીએ MI-17V5 તેની આપણે વાત કરીએ, હેલિકોપ્ટરની વાત કરીએ તો આ ચોપરની તુલના ચિનુક સાથે પણ થાય છે તેવું પણ કહેવામાં આવે છે. આગળ જે પીએમ મોદી પણ આ હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરે છે. તેના હેલિકોપ્ટરની આપણે ખાસિયતો વિશે વાત કરીએ. જે MI-17 હેલિકોપ્ટરની જે ખાસિયત છે તેની મુદ્દે આપણે વાત કરીએ, જેમાં આજે આ સમાચાર સામે આવ્યા તેના મુદ્દે. તો 250 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રફતાર આ MI-17V5 છે તે ધરાવે છે. તો 6000 મીટર સુધી ઊંચાઈ સુધીની તે ઉડાન છે તે પણ ભરી શકે છે. MI-17V5 આ હેલિકોપ્ટર છે. એકવાર ઈંધણ ભર્યા બાદ 580 કિલોમીટર સુધી તે દૂર જઈ શકે છે, તે તેની ખાસિયત છે. આગળ બીજી ખાસિયતની વાત કરીએ તો 2 સહાયક ઈંધણ ટેન્ક છે અને તે ભર્યા બાદ 1065 કિલોમીટરની દૂરી તે વધારી શકે છે. તો 13000 કિલો વજન પણ તે સાથે લઈ જઈ શકે છે અને તેની સાથે તે ઉડાન પણ ભરી શકે છે. આગળ તેની ખાસિયતમાં વાત કરીએ, 36 આર્મ્ડ જવાનો છે તે પણ આ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર થઈ શકે છે.
તો જે પ્રકારે આ સેનાનું હેલિકોપ્ટર જે ક્રેશ થયું, ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા. 11ના મૃતદેહ અત્યાર સુધી મળી ચૂક્યા છે. તો સતત આ મુદ્દે અપડેટ છે તે અમે આપી રહ્યા છીએ અને અત્યારે આપણી સાથે મહેમાન જોડાઈ ગયા છે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે. તો રાકેશ શર્મા રાજકીય વિશ્લેષક આપણી સાથે જોડાયા છે અને जितेंद्र चौहान कर्नल अपनी साथ जुड़ाया है. तो राकेश शर्मा जी और जितेंद्र सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले बुलेटिन इंडिया में. और हम बात कर रहे हैं आज की ये घटना की बात कर रहे हैं. खूब बहुत बहुत दुखद घटना ये अभी सामने आई है. तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, 11 जो मृतदेह वो अभी उसका जो न्यूज़ सामने आया है, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र सिंह, आपसे शुरुआत करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ये जो भी दुर्घटना हुई बहुत ही दुखद दुर्घटना है, क्योंकि शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पे इतना सीनियर ऑफिसर जो ट्रेवल कर रहा हो और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो. इससे पहले हुए हैं माइनर इंसिडेंट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने उस पे तो ये बहुत ही दुखद घटना है. और जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं अभी कि जो 14 लोग ऑन बोर्ड थे इंक्लूडिंग पायलट और स्टाफ, उसमें से काफी लोगों को बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं. अभी उनके बारे में कुछ कह पाना शायद बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो अनकंफर्म न्यूज है वो शायद बहुत अच्छी नहीं है जी. तो इसलिए अभी हम लोग यही कह सकते हैं, एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी लोग हैं वहां पे उनकी सुरक्षा किसी तरह से ईश्वर उनको सुरक्षित रखे, उनको ठीक करे. लेकिन जो अनकंफर्म न्यूज खबरें हैं वो शायद बहुत अच्छी नहीं है. जी राकेश जी, जिस प्रकार से जितेंद्र सिंह ने कहा कि खबरें अभी जो कंफर्म न्यूज़ है वो अभी अच्छी नहीं है, वो जैसे बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से हमने दृश्य भी देखे हैं जो प्लेन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका. राकेश जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है. बहुत दुखद घटना है जी. और मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो 14 लोग हैं, जिसमें 10 इन बोर्ड, 2 पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और गनर, सभी को भगवान सुरक्षित रखें, उनके जीवन को सुरक्षित रखें. और मुझे मी 17 हेलीकॉप्टर में जो मी 17 राकेश जी अभी जो ताज़ा समाचार सामने आ रहे हैं उसमें, ताज़ा न्यूज़ जो सामने आ रहे हैं उसमें 11 लोग हैं कि उनकी जो बॉडीज है वो निकाली गई है, मृतदेह उनके निकाले गए हैं. वो ताज़ा समाचार अभी ये सामने आ रहे हैं. बहुत दुखद घटना आपने जो बताया कि ये 11 बॉडी निकाली जा चुकी है. मैं बड़ा आज के डेट में बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि मैंने मी 17 हेलीकॉप्टर में काम किया हुआ है. और एक सुरक्षित, अगर मैं बात करूं, दुनिया का सुरक्षित हेलीकॉप्टर है जो रशियन मेड है, मी 17 V5, जिसमें दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चाहे सेना का कोई ऑपरेशन हो, वीआईपी मूवमेंट हो, इवन प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ गए थे तो मी 17 V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया था जी. और इस घटना से कहीं ना कहीं एक सीख लेने की भी वायुसेना को जरूरत है कि इसमें कहाँ चूक हुई है. क्या मौसम ठीक नहीं था, या मुझे लगता है जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश का मैं पिक्चर देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी पेड़ से टकराया है जो लो लेवल फ्लाइंग में. अगर इस तरह के वीवीआईपी को आप लेके जा रहे हैं तो यह देखने की जरूरत है कि हम लो लेवल फ्लाइंग ना करें. और इसकी जांच से तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ चूक हुई है और आगे इसको सावधानी बरतने की जरूरत होगी. जी, तो हम अभी चर्चा की शुरुआत विस्तार पूर्वक करते हैं. दोनों की प्रतिक्रिया हमने ले ली. जितेंद्र सिंह, आपसे हम शुरुआत करते हैं. तो जिस प्रकार से अभी तपास के आदेश हैं वो तो दिए जा चुके हैं, और जो बात सामने आ रही है कि जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं था, वो वैसे भी जो न्यूज़ है वो सामने आया है. तो आपके हिसाब से इसमें क्या कमी रह गई है, जिस प्रकार से राकेश जी ने भी अभी बात की है? देखिए, इस टाइम जो क्रैश के क्या कारण है उसके बारे में कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जहां पे क्रैश हुआ है कन्नौज इलाके में, वो इलाका एक पहाड़ी इलाका है और अंडर ग्रोथ भी वहां पे काफी ज्यादा है. बेसिकली कहा जाएगा कि उसके जंगलात काफी ज्यादा है. ठीक है. तो ये एक फ्लाइंग मशीन है, कोई भी मैकेनिकल चीज, ये तो आपको मानना पड़ेगा, वीवीआईपी इसमें फ्लाई कर रहे थे,
इसके प्रॉपर चेकअप हुए होंगे, हर तरह से फिटनेस चेक की गई होगी। जो पायलट्स इसमें रहे होंगे वो भी काफी एक्सपीरियंस पायलट्स रहे होंगे, क्योंकि जनरली वीआईपी को जब भी कोई फ्लाई करता है तो एक्सपीरियंस पायलट ही लेके चलते हैं। तो ऐसे में क्या ये मैकेनिकल फेल्योर हुआ है या वेदर की वजह से हुआ है, क्योंकि वो इलाका एक ऐसा है जहां पे वेदर कभी भी खराब हो सकता है, तो उसमें क्या विजिबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो क्या उसकी वजह से हुआ है या कोई पायलट का मिस जजमेंट हुआ, तो इसके बारे में कुछ भी कह देना इस समय शायद बहुत जल्दबाजी होगा। हमको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि जो भी इंक्वायरी आती है या उससे पहले जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है या एयरफोर्स की तरफ से या आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, तो थोड़ी देर के लिए शायद हम लोगों को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसी तरह जो कैजुअलिटीज की बात कही जा रही है, जैसा आपने भी कहा है एंड बाकी भी जो आ रही है कि 11 की शायद मतलब नहीं रहे 11 लोग, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोगों को ऐसे मौके पे थोड़ा संयम बरतना होगा और वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है, वो लोग भी सारे एक दूसरे के टच में है। तो मानी बात है, ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में क्या है उन्हीं लोगों को पता है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद ही शायद हम लोग इसको जी। राकेश जी, आपने बात की कि आपने इसमें काम भी किया हुआ है, तो अभी बात कर रहे हैं जो सबसे पहले जो न्यूज़ सामने आई थी, जो अहवाल सामने आए थे कि एटमॉस्फेयर की वजह से ये घटना हो चुकी है, ऐसा सामने आया था। तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती है, जिस प्रकार से अभी जितेंद्र सिंह ने भी कहा? देखिए, सबसे जो प्रमुख कारण मुझे लगता है, जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है बता रहे हैं, उनका भी काफी लंबा अनुभव है। जो वेदर कंडीशन, क्योंकि ये लो लेवल वैली में भी फ्लाइंग कर सकता है पहाड़ के साथ साथ। अब कंडीशन क्या आती है कि वहां की वेदर, कई बार क्या होता है पहाड़ों के अंदर इमीडिएट वेदर खराब हो जाता है और विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है। वहां पे कई संसाधन आपको नहीं, कि पता नहीं चलता है कि अगर कोई बड़ा पेड़ है जिससे कहीं उसका टेल रोटर टच कर जाए, क्या संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो जहां तक लगता है, बिकॉज मैंने खुद जम्मू कश्मीर के वैलीज में फ्लाइंग किया हुआ है मिशन हेलीकॉप्टर के साथ, तो कई बार इस तरह की परेशानी आती है। और स्पेशली जो मैं बात करूं, वीवीआईपी जितनी भी फ्लाइट्स है जो उनकी होती है, उसके लिए हमारे वायुसेना के सबसे बेस्ट पायलट्स को भेजा जाता है और हर कंडीशन में वो अपने आप को ढाल लेने के लिए फ्लाइंग करने में सक्षम होते हैं। तो अब तो जब इसका ब्लैक बॉक्स को चेक किया जाएगा, वायुसेना इसकी इंक्वायरी करेगी, तब एक्चुअल कारण पता चलेगा कि क्या रीजन था, पायलट्स की आपस में क्या बात हुई है, उनका एटीसी से संपर्क में क्या बातचीत हुई, लास्ट जो उनकी बातचीत हुई होगी वो सारा रिकॉर्डेड ब्लैक बॉक्स में होता है। सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो उसमें 14 सेना के लोग थे, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे, भगवान उनको किसी तरह बचाए, यही मेरी प्रार्थना है। जी जी, आपने ब्लैक बॉक्स की बात की, तो उसके बाद ही सामने आएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था और अभी ताज़ा जानकारी है तो वो क्या सामने आ रही है। अभी बात कर रहे हैं बिपिन रावत की, हम बात करें तो पूरा देश अभी प्रार्थना कर रहा है, हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और एक अच्छा जो न्यूज़ है वो सामने आए। बिपिन रावत की हम बात कर रहे हैं, तो जितेंद्र सिंह आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी उनसे मिले होंगे कई बार, तो बहुत ही उम्दा रोल उन्होंने निभाया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम है कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए और उम्दा रोल उन्होंने निभाए। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, जैसे सीडीएस के बारे में आपने कहा है, सीडीएस से पहले जो आर्मी चीफ थे तब भी उन्होंने काफी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी काम किया है। और ये कॉम्बैट बैटल ग्रुप, थिएटर कमांड, ये सारी चीज उनका एक ब्रेन चाइल्ड था। ये होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बाकी देश आगे बढ़ते हैं, अपना मॉडर्नाइजेशन करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसी हिसाब से हमको भी अपनी सेनाओं को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रीग्रुपिंग करना पड़ता है। इसके ऊपर हम काफी काम किया।
और उसके बाद वो सीडीएस जब बने तो एज ए सीडीएस ऑल्सो उन्होंने कई आइडियाज मूव किए, कई उसके ऊपर काम कर रहे थे। वो बेसिकली ज्यादातर जो उनका काम इस समय चल रहा था वो थिएटर कमांड के ऊपर चल रहा था। थिएटर कमांड एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का भी है, सरकार भी चाहती थी कि थिएटर कमांड होना चाहिए और उसी हिसाब से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसके ऊपर काफी तेजी से काम कर रहे थे वो, और बहुत जल्दी इसको एक एक्चुअल उसमें दिखाई पड़ना चाहिए था। तो ये जो एक तरह से जो बिपिन रावत का है, एक काफी जो विजनरी अफसर कहे जाते हैं, उनका एक विजन था कि कैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को करना चाहिए और कैसे तीनों फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ना चाहिए। तीनों एक साथ का अंदर आपस का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे हो, सिनर्जी के ऊपर कैसे काम किया जाए, इसके ऊपर वो काफी ज्यादा काम कर रहे थे। तो ये सब चीजें जो है ये उनका एक योगदान कहा जाएगा डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये उनका मतलब एक बहुत बड़ा योगदान है, मतलब, और जो अभी भी शायद उसी को काम चल रहा है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जो काम उन्होंने स्टार्ट किया है उसको आगे भी लेकर के चलेंगे। जी राकेश जी, आप क्या क्या कहना है इसमें? और देखिए, जो सीडीएस बिपिन रावत थे, सेना के सेनाध्यक्ष रहते हुए उनके काल में ही पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगातार कार्य कर रहे थे और तीनों सेनाओं को जोड़ के उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए उनका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और आपको बता दूं कि भारत में अभी आज के समय में सबसे पॉपुलर सेनाध्यक्ष अगर मैं बात करूं, बच्चा बच्चा जानता है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। और आज के समय में पूरी भारत की जनता प्रार्थना कर रही है कि जनरल सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पूरी टीम को भगवान सकुशल दोबारा कार्यस्थल पे लौट आए और प्रभु उनको लंबी उम्र दे, ताकि जो एक उनका विजन है, सपना है सेना के मॉडर्नाइजेशन को, सेना को आगे ले जाने का, वो पूरा हो सके। जी आगे हम बात करते हैं जो उनका पद की है, जो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो उनका जो अभी पद पे है, उस पद पे बात करें तो ये जो उनका पद है वो किस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है तीनों सेनाओं को लेके? देखिए, जो सीडीएस का जितेंद्र सिंह आपसे जी। हाँ, सीडीएस का जो पद है ये काफी दिनों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी जी। कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस होना है उसमें सीडीएस का पद होना चाहिए। कोई एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट का इंटरेक्शन हो और गवर्नमेंट जिस सेंटर पॉइंट से अपने आप को बाकी तीनों फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट कर सके और प्लान डिस्कस किए जा सके। इसी चीज को रखते हुए सीडीएस का पद क्रिएट किया गया था। और इससे एक फायदा ये भी होना था कि जो तीनों विंग्स के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है उसको भी कैसे आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए और उसको सिंक्रोनाइज किया जाए। और साथ में जो फोर्सेस का अभी तक क्या हो रहा था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे, तीनों विंग्स के जो भी सीनियर मोस्ट होते थे वो उसको चेयर करते थे, लेकिन उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो चीज नहीं थी, पावर जिसको कहा इसके विंग्स को वो एक सिंक्राइज कर सके। वो एक गवर्नमेंट लेवल पे होता था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेवल पे होता था। लेकिन सीडीएस का पद आ जाने के बाद ये काम सीडीएस के पास आ गया और एक तरह से सीडीएस जो है वो तीनों विंग्स को एक साथ कैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ाया जाए और कैसे सिंक्राइज किया जाए, और साथ में जो प्रिक्योरमेंट होता है, जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर वेरियस प्रिक्योरमेंट्स हो रहे हैं, उनको कैसे सेंट्रलाइज किया जा सके जिससे कि आपस में सिनर्जी बचे और जो रिसोर्सेज हमारे हैं उनको ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इससे सीडीएस का पद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है जिसको काफी दिनों से इसके ऊपर डिमांड चल रही थी, जो कि अब जाकर इसको पूर्ति हुई थी। और बिपिन रावत जी हमारे पहले सीडीएस बने। तो पहले जब कोई सीडीएस पहला होता है तो मानिएगा तो उसका काम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज को उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एसओपीज बनानी पड़ती, कैसे आगे काम होगा, इवन हेडक्वार्टर के अंदर कैसे काम होगा उसको भी उसको करना पड़ता है। तो एक तरह से बिपिन रावत जी ने एज ए सीडीएस काफी ज्यादा इसके ऊपर मेहनत की है और कर रहे हैं। जी राकेश जी, सीडीएस की पोस्ट की अभी बात हो रही है, तीनों जो सेना है उसका जो भी है काम वो सीडीएस के पास आता है, तो आप इस पोस्ट को अभी किस तरह से देख रहे हैं? जैसे पहले नहीं था परंतु अब आया है, बिपिन रावत जी पहले सीडीएस बने हैं, उसके ऊपर।
देखिए, सबसे पहले इससे पहले क्या होता था कि तीनों सेना के सेनाध्यक्ष थे, उनकी कमेटी होती थी, उसमें सीनियर मोस्ट होते थे, उनको एक पदभार दिया जाता था। इस सरकार ने क्या किया कि सीडीएस का पद बनाया कि अलग से एक पूर्णकालीन, कि तीनों सेनाध्यक्ष तो रहेंगे, जी सरकार से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, सेना के प्रगति के लिए जो कार्य हो उसमें कहीं रुकावट न हो, इन चीजों हम्म के लिए सीडीएस का एक पूर्णकालीन पद दिया गया। और उसके पहले सीडीएस हमारे जनरल बिपिन रावत जी बने। हम्म और बहुत ही, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि बहुत ही जो एक पहला जो महत्वपूर्ण पद होता है उस पे कार्य करना कठिन होता है, क्योंकि हर चीज हम्म नए तरीके से करना होता है। और उनके समय से ही मॉडर्नाइजेशन का एक जो काम शुरू हुआ, बहुत तेजी से शुरू हुआ। हम्म और हम लोग उम्मीद करते हैं कि भगवान जल्दी इनको स्वस्थ करे, अपने पदभार को संभाले, देश की प्रगति को, सेना को पूरे दुनिया में आगे लेके चले। मॉडर्नाइजेशन में भारतीय सेना आगे बढ़ रही है, तो अभी आज के डेट में सीडीएस के स्वस्थ होने की, जल्दी आने की हम पूरे देशवासी भगवान से दुआ करते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि जल्दी से अपने पदभार को संभालें और सेना के समन्वय को देखें। हम्म। जी अभी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, ठीक होके वापस आ जाए, वैसे सब दुआ तो कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो जो अभी भारत की हम बात करें तो पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, तो बहुत तनावपूर्ण माहौल अभी जो बहुत बना हुआ है। हम देखें तो चीन की और देखें, चीन की सीमा में देखें, पाकिस्तान पे देखें, तो जब से बिपिन रावत आए हैं उससे पहले भी बात करें, परंतु अब बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल है। तो ये अभी जो घटना आई है उससे बात करें तो कैसा तनाव ज़्यादा अभी हो सकता है? इस घटना को आप आगे अभी कैसे देख रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए, जो एक सिस्टम होता है डिफेंस फोर्सेस का, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो और चाहे नेवी हो, वो एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड नहीं होती। हम्म ये एक हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, लेकिन हम्म इस हादसे की वजह से हम्म, हमारी सिक्योरिटी की प्रिपेयरनेस के ऊपर किसी तरह का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज जी मान लीजिए, ठीक जी है। जी ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये एक हादसा हो गया और इसका फायदा चीन या पाकिस्तान उठा सकता है। ऐसे हालात नहीं होंगे और ना ये हमारी डिफेंस फोर्सेस इसको परमिट करेंगे, क्योंकि जो सिस्टम एक बना हुआ है फोर्सेस के अंदर, वो काफी अच्छा सिस्टम है। उसके अंदर यस, पर्सनालिटी मैटर करती है, पर्सनालिटी लीड करती है, जी लेकिन उसकी अब्सेंस में ये कह देना कि इसके ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा, शायद गलत होगा। तो इसलिए वो जो कॉन्फ्लिक्ट या जो भी है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं। जी राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? आपकी प्रतिक्रिया क्या है जिस प्रकार से अभी ये जो ताज़ा न्यूज़ जो सामने आ रहा है वो मैं आप दोनों को बता दूं कि जो राजनाथ सिंह है उनके परिवार से मिले, सीडीएस के परिवार से जो मिले हैं, और रक्षा वो वायुसेना के प्रमुख से भी उन्होंने बातचीत की है। तो अभी जो ताज़ा समाचार सामने आ रहे हैं कि वो कल यानी कि गुरुवार को आगे का जो उनका निवेदन है वो कल देने वाले हैं, ऐसा अभी ताज़ा समाचार सामने आ रहे हैं, ताज़ा न्यूज़ सामने आ रहे हैं। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी सीडीएस की हालत है वो अभी गंभीर बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से? आप अभी अंत में क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों का जो मंतव्य क्या है अंत में? राकेश जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय सेना हर फ्रंट पे सक्षम है। और भारतीय सेना के तीनों विंग, चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे हमारी आर्म सेना है, तीनों सक्षम है हर फ्रंट पे। जहां तक सीडीएस का सवाल है, जल्दी वो रिकवर होंगे और हमारी सेनाएं अपना अपना कार्य करती रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पे, हम लोग फ्रंट पे हैं और बहुत अच्छा से हमारी सेना काम कर रही है। इससे सेना के मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है और बहुत जल्दी हम जनरल बिपिन रावत स्वस्थ होकर अपना कार्यभार संभालेंगे। जी जितेंद्र सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? जैसे उनका मैं भी यही कहूंगा, देखिए इसके ऊपर प्रिपेयरनेस के ऊपर, जैसे मैं पहले कहा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मनोबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेना की जो पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ जो तैयारियां हैं उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन साथ में जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे वहां ईश्वर से कि जो भी है वहां पे वो सारे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, बिपिन रावत जी अपना वापस आके ऑफिस संभालें, बाकी लोग भी अपने अपने घर सकुशल पहुंचे, यही मेरी प्रार्थना। जी,
तो बिपिन रावत जी जल्द से जल्द सामने आ जाए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, और देश पूरा अभी प्रार्थना कर रहा है तो जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। वैसे ही हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र सिंह चौहान जी और राकेश शर्मा जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और ये बातें हमारे साथ की उसके लिए। तो हेलिकॉप्टर MI-17V5 ક્રેશ થયું અને જે સમાચાર સામે આવ્યા 11ના મૃતદેહ અત્યાર સુધી જે બહાર છે તે કાઢવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જે 3 લોકો છે કે તેમને બચાવી લેવાયા છે, પરંતુ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં તેઓ દાઝી ગયા છે, 85%થી વધારે તેઓ દાઝી ગયા છે તેવા સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે। અને જે અત્યારના મહત્વના સમાચાર જે મોટા બીજા સામે આવી રહ્યા છે કે જે રાજનાથસિંહની વાત કરીએ તો તે અત્યારે તેમના પરિવારને મળવા પહોંચ્યા હતા, સીડીએસના પરિવારને, અને જે આગળનું નિવેદન છે તે કહેવામાં આવ્યું છે કે સંસદમાં નિવેદન આપશે, પરંતુ આવતીકાલે એટલે કે ગુરુવારે આ મુદ્દે આગળનું નિવેદન આપી શકે છે રાજનાથસિંહ, તેવું અત્યારે કહેવામાં આવી રહ્યું છે। તો સતત અપડેટ્સ આ મુદ્દે અમે આપને આપતા રહીશું। જનરલ બિપિન રાવત, જીડીએસ જનરલ બિપિન રાવત વિશે અમે બુલેટિન ઇન્ડિયા આપને સતત આ મુદ્દે પણ અપડેટ સતત આપતા રહીશું। તો અત્યારના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો।